class 4. In our last class, we had started about the chapters of states and plains 2, and we had started the topic West Bengal. Today, we will discuss about the climate, agriculture, vegetation, and industries and minerals in West Bengal. So let's start with climate. West Bengal has a monsoon type of climate. It has three main seasons: summer, monsoon, and winter. Summers are very hot and humid, when temperatures can soar up to 45 degrees centigrade. Normally, just a month before the monsoon rains begins in June, there are thunder showers with strong winds, which are called nor'westers. In the state, they have a special name, Kalbaisaki. Winters in the plains are very pleasant and mild, with the average temperature being about 15 degrees centigrade. However, in the hilly regions, winters are very cold and sometimes they experience snowfall. So, क्या बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल का एक्चुअली वेस्ट बंगाल बिलोंग्स टू अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, और यहाँ पे तीन सीजन देखने को मिलता है: समर, मानसून एंड विंटर. समर वेस्ट बंगाल में हॉट एंड ह्यूमिड है, एंड समटाइम्स द टेम्परेचर एक्सटेंड्स अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके बाद एंड ऑफ समर क्या होता है कि मतलब मानसून स्टार्ट होने से ठीक एक महीने पहले यहाँ पे थंडर शावर होते हैं विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिसको हम लोग नॉर्वेस्टर्स बोलते हैं. दैट इन लोकल नेम इन वेस्ट बंगाल इट इज़ नोन एज कालबैसाखी. विंटर्स यहाँ पे प्लेन्स में बहुत प्लेजेंट एंड माइल्ड होते हैं, बट हिली रीजन में विंटर में ठंडा बहुत ज़्यादा होता है. कभी कभी वहाँ पे स्नोफॉल भी होते हैं. एंड एवरेज टेम्परेचर विंटर में वेस्ट बंगाल में 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है. Next, agriculture and vegetation. Various types of natural vegetations are found in the state. There are mangrove forests in the coastal region of the Sundarbans. In the plateau region, there are forests of sal trees. In the hills, there are evergreen trees, magnolia, oak, pine, and also bamboo groves. Agriculture is the chief occupation, and rice is the chief crop that is grown. Tea is grown on tea estates on the slopes of hills, mainly in and around Darjeeling district. Many types of fruits and vegetables are grown as well. So क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर में बोल रहा है, वेजिटेशन में सबसे पहले बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर इट्स मैनग्रोव्स, जो इसके कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है. Particularly, we can say about Sundarban. Sundarban is a mangrove that grows in the coastal regions. इसके अलावा प्लेटो रीजन में साल ट्रीज का फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एंड हिली रीजन में एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे ओक, पाइन, मैग्नोलिया, ये सब कुछ. इसके अलावा बैम्बू ट्रीज वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं. एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड राइस यहाँ का मेन कल्टिवेटेड क्रॉप है. राइस के अलावा यहाँ पे टी भी कल्टिवेट किया जाता है, बट टी इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन द स्लोप्स ऑफ हिल्स, on the slopes of the hills, it is mainly cultivated in and around the Darjeeling district. और भी यहाँ पे बहुत तरीके के vegetables and fruits cultivate किया जाता है. Next we will discuss about the industries and minerals. West Bengal has a rich wealth of minerals. Coal is mined in Raniganj and Asansol. Fire clay is found mainly around Raniganj. China clay, which is used in pottery, rubber, paint, and textile industries, is also found in the state. Limestone is found in Darjeeling, Jalpaiguri, Bankura, and Purulia. Copper comes from Jalpaiguri and Darjeeling. The petrochemical industry at Haldia and the steel industries at Durgapur and Asansol are the biggest industries of the state. Railway locomotives are manufactured in Chittaranjan. The ports at Haldia and Kolkata are used to import and export various goods and products. Murshidabad is famous for its silk. इंडस्ट्रीज़ का पहले बात करते हैं. इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है हल्दिया में, विच इज़ वेरी फेमस, एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, मतलब स्टील प्लांट्स है असानसोल और दुर्गापुर में. इसके अलावा यहाँ पे रेलवे लोकोमोटिव्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है चित्तरंजन में. फिर यहाँ के दो पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट एंड कोलकाता पोर्ट, जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए यूज़ होता है. इसके अलावा मुर्शिदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. मुर्शिदाबाद बेसिकली सिल्क के लिए बहुत फेमस है. नेक्स्ट मिनरल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में बहुत तरीके के मिनरल्स मिलते हैं. मतलब वेस्ट बंगाल का मतलब बहुत सारा जगह मिनरल्स के लिए ही फेमस है. जैसे कोल रानीगंज में मिलता है, रानीगंज और आसानसोल में मिलता है. फायर क्ले
रानीगंज में मिलता है। चाइना क्ले जो पॉटरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेंट्स एंड रबर, ये सब कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। बेसिकली वो भी वेस्ट बंगाल के स्टेट में मिलता है। लाइमस्टोन दार्जिलिंग में मिलता है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, पुरुलिया, यहाँ पे भी लाइमस्टोन्स मिलते हैं। कॉपर कम्स फ्रॉम जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग। कॉपर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग से आता है। तो अगर मिनरल्स का बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल हैज़ अ रिच वेल्थ ऑफ मिनरल्स, मतलब वेस्ट बंगाल में बहुत तरीके के मिनरल्स मिलता है। So class 4, please go through the text of Climate, Agriculture, Vegetation and Industries and Minerals of West Bengal. Along with this explanation, thank you.